So a lot of smiley faces are present here. My name is Anuj Pratap Singh Yadav. Your subject is agriculture, marketing, trade and prices. Today I deliver a lecture. What is the marketing? What is the agriculture marketing? What is the scope and subject matter of agriculture marketing? Okay, and then what is the difference between the agricultural goods and manufactured goods? What is the importance of agricultural marketing? Okay, so a lot of topics we are deliver here. Okay, what is market? What is the scope? Okay, what is the subject matter? What is subject matter? What is the difference between the agricultural goods and manufactured goods? And last unit is क्या बोलते हैं उसको, importance of agriculture marketing. So firstly, let me here what is the meaning of market. ठीक है, so the word markets come from the Latin word. ठीक है, किस वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से, जिसका क्या है? मार्केटस. ठीक है, द वर्ड मार्केट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स मर्केंडाइज और ट्रेड और ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड. ठीक है, मतलब क्या है कि जो मार्केट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. ठीक है, जिसको किससे लिया गया? मार्केटस से, जिसका मतलब होता है कि ट्रेड और मर्केंडाइज. ठीक है, वर्ड मार्केट हैज़ बीन वाइडली एंड वैराइडली यूज्ड टू मीन, मतलब पर्टिकुलरली जो मार्केट वर्ड है किसके लिए यूज़ किया जाता है? दैट मीन ए प्लेस और बिल्डिंग वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. ठीक है, जहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कमोडिटीज हैं जहाँ पर खरीदी और बेची जाती है. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज मार्केट. फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्केट. ठीक है, एंड सेकेंड इज दैट पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ. ठीक है, प्रोडक्ट एग्जाम्पल व्हीट मार्केट, कॉटन मार्केट. So here some of the definitions are here. Select please. ठीक है, according to Converse Huger, the definition of market is that marketing includes those business activities, ठीक है, which are involved in flow of goods and services from production to consumption. ठीक है, ये Converse Huger के अनुसार इनका कहना है कि मार्केटिंग इंक्लूड्स दोज बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब मार्केट में वो सब बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें which are involved in flow of goods and services, मतलब कि जो goods और सर्विसेज उनका फ्लो रहे, जिसमें क्या है? फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजम्पशन पॉइंट. ठीक है, तो हेयर फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजम्पशन पॉइंट. ठीक है, वेयर ऑल कम्युनिटीज आर, ठीक है, प्रेजेंट है. देन द प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजम्पशन पॉइंट है द फ्लो ऑफ गुड्स दैट इज नोन एज द मार्केट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ह्यूगे. And the second definition is that according to J.C. Abbott. ठीक है, so agriculture marketing includes all those activities which means food items and raw materials reach the consumer. ठीक है, from a farm. इनका कहना है, J.C. Abbott का कहना है, देखिए both definitions are similarly same but something is different. इनका कहना है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें फूड आइटम्स है या रॉ मटेरियल्स है, वो कहाँ से? कंज्यूमर जो पहुँचता है कंज्यूमर फ्रॉम ए फार्म, मतलब एक फार्म से, एक प्रक्षेत्र से वहाँ से लेके कंज्यूमर तक पहुँचता है रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल्स. वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कहलाता है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. And this is the concept of agriculture marketing. So the term agriculture marketing is composed of two words, agriculture and marketing, whereas agriculture in the broader sense means activities aimed to use the natural resources. ठीक है, for human welfare of course. ठीक है, that is it includes all the primary activities of production. ठीक है, but generally it is used to mean growing and raising crops and livestock. Of course, when raising crops and livestock, that is also comes under the agriculture. So it includes all the activities involved in the creation of time, form and place. This is very important for us, and also for the presence of agriculture marketing. That is the creation of time utility, place utility, form utility and possession utility. Okay, so next please. Here are the objectives of the study. Why we are studying the agriculture marketing? So the main objectives are here. The study of agriculture marketing system is necessary to understand the complexities, ठीक है, involved and identification of bottlenecks with a view to providing efficient services in the transform of farm, ठीक है, product and input from producer to consumer. Okay, next please.
Then scope and subject matter of agriculture marketing. So this is agriculture marketing in the product sense is concerned with the marketing of farm product produced by the farmer. सिंपल सी बात है कि जो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर उसमें पहला पॉइंट कहता है कि द मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द फार्मर, जो किसान है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पादन किया जाता है उसका बाजार में, ठीक है, मार्केटिंग करना, ठीक है, वो क्या वो क्या है आपका स्कोप। देन सेकंड क्या है, द मार्केटिंग ऑफ फार्म इनपुट रिक्वायर्ड बाय द फार्मर इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर। दोनों तरह से आप सोचिए कि जो फार्मर उत्पादन कर रहा है वो, ठीक है, जाके वो उसकी जो कम्युनिटी है, जो गुड्स है वो बाजार में जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि जो फार्मर है जो उत्पादन करने के दौरान जो इनपुट्स यूज कर रहा है, ठीक है, जो वेरिएबल्स यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी बाय करता है कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सो हेयर these are two scopes, ठीक। and next is difference in marketing of agriculture and manufacturing. This is the new topic, what the difference between the agricultural and manufactured goods. So a lot of differences is that here the marketing of agricultural commodities is different from the marketing of manufactured goods, of course, because of the special characteristics, ठीक है, the special characteristics which the agriculture sector possesses and which are the different from those of the manufacture sector are. So a lot of on the basis of the difference between the agriculture goods or manufacture, a lot of basis, ठीक है। So here one basis is that perishability of the product, ठीक है। According to the perishability of product, what is the difference between the agricultural and manufactured goods, ठीक है। So here is most farm products are perishable in nature, ठीक है। most farm products are perishable means the agriculture, most of all agricultural products are perishable in nature because they are destroying after some hours, after some weeks, after some months, but the period of their perishability varies from a few hours to few months, also a few weeks, ठीक है। next please. The second, on the basis of seasonality of production, of course the farm product are produced in a particular season, as we all know that they can't be produced throughout the year, eh? When season are come, then we can sow the crops, ठीक है, particular season wise, but the in the harvest season prices fall, of course we all know that in the harvest season prices are falls, but the supply of manufactured goods कैन बी एडजस्टेड और मेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, जो एग्रीकल्चर गुड्स है, वो सीजन के अनुसार ही हम उसको सोइंग कर सकते हैं, उसको बो सकते हैं, ठीक है। वो एक फिक्स टाइम है कि खरीफ के टाइम पर खरीफ की फसल करना, रबी के टाइम पे रबी की फसल करना, उसके बाद उसके आगे पीछे हम नहीं कुछ कर सकते। एंड देन हार्वेस्टिंग के टाइम पे ऑफकोर्स जो प्राइस होता है वो जो कम्युनिटीज एग्रीकल्चर है वो लो हो जाता है। बट हम अदर साइड अगर देखें मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स में ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चर गुड्स में कभी भी किसी भी टाइम पे हम जितना हमको चाहिए होता है, जो डिमांड होती है, सपोज दैट नाउ डेज क्या है कि बहुत सारी जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो कंपनी है या मोबाइल फ़ोन कंपनी है, ये क्या करती है कि जितनी डिमांड बढ़ती है उसी टाइम पे उतना वो प्रोडक्शन करके अपना मार्केट में सेल कर देते हैं। बट एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज द बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्ट। So this is also the second difference. Next difference, the characteristics of bulkiness of most farm product makes their transportation and storage difficult and expensive, of course, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो एग्रीकल्चर का है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फार्म है वहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो बल्क में आता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो बल्किनेस है उसकी वजह क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो थोड़ा है वो दिक्कत करता है। दूसरा बात क्या है कि जो ये स्टोरेज करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस दौरान हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा खर्चीला ज़्यादा हो जाता है। दिस फैक्ट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन टू समवेयर नियर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन और प्रोसेसिंग, ऑफ कोर्स, ठीक है। द प्राइस स्प्रेड इन बल्की प्रोडक्ट इज हायर बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। प्राइस हेयर द प्राइस स्प्रेड मीन्स मतलब जो आप प्रोडक्शन पॉइंट से लेके, ठीक है, प्रोडक्शन पॉइंट से लेके मार्केटिंग तक उस दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनमें एडेड कॉस्ट आ जाता है, उनमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है, वो कॉस्ट आपका क्या कहलाता है, प्राइस स्प्रेड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिशन पर्पस, दिस इज द वर्ड मेन इंपॉर्टेंट इज प्राइस स्प्रेड ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है। एंड वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
a lot of variations in quality of product, because there is a large variation in the quality of agriculture product which makes the grading and standardization, ठीक है, which makes the grading and standardization somewhat difficult. There is no such problem in manufactured goods for there are product and uniform quality. अब सिंपल सी बात होती है कि जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं. अगर हम बात करें क्वालिटी की या वेरिएशन की बात करें इसकी कि किस तरीके का वेरिएशन रहता है, तो जो हमारा सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि हमारा मैंगो है, मैंगो को हार्वेस्टिंग किया, तो मैंगो में हम क्या क्वालिटी देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइपेंड है या नहीं, ठीक है, राइपेंड है या नहीं. दूसरा वो उसका साइज़ क्या है, ठीक है, तो उसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं लगा है, कितना साफ है कितना नहीं. तो इन सब के कई आधार पर जो वेरिएशन करके देखते हैं तो कई सारी ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाती है. बट मैन्युफैक्चर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एक बार आपने कंप्यूटर में जो सेट कर दिया, ठीक है, वो वैसे का वैसा आपका जो यूनिफॉर्म जो क्वालिटी होगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की निकल के बाहर आएगी. नेक्स्ट, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. इससे पहले मैं आपको बता दी हूँ कि जो सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्शन है कि सीजन के आधार पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक वैसे ही सिमिलर ये है कि जब हम सीजनल के आधार पे लेंगे तो ये रेगुलर ऑटोमेटिक बने रहना भी पॉसिबल. कैसा, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन नेचुरल कंडीशन. सेम थिंग इज रिपीट हेयर ऑल्सो. क्या है कि ऑल हम कह सकते हैं कि जो ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है टोटली डिपेंड ऑन नेचर, ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन क्लाइमेट, ठीक है. सो क्या है यहाँ पर, विद द वेरीफाइंग सप्लाई द डिमांड रिमेनिंग ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्लक्चुएट सब्सटेंशियली, ठीक है, तो इसी वजह से प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है. नेक्स्ट प्लीज. स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड स्कैटर्ड प्रोडक्शन. जाहिर सी बात है, ठीक है, फार्म प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. द मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल साइज. सिंपल सी बात है कि जो स्मॉल साइज होल्डिंग है या स्कैटर्ड प्रोडक्शन होने की वजह क्या है. ओवरऑल इंडिया में क्या है कि मोस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स अप्रॉक्स 50% और 60% जो फार्मर है वो आपका क्या है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, ठीक है. मार्जिनल फार्मर मीन्स क्या है कि जिसकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी विच आर कितनी होनी चाहिए, 0 से 1, ठीक है, या लेस देन 1 हेक्टेयर जो है वो आपका मार्जिनल फार्मर का है, ठीक. तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, अप्रॉक्स 50+ है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो स्कैटर्ड प्रोडक्शन जाहिर सी बात है होगा, ठीक है. एंड देन दिस मेक्स द एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई डिफिकल्ट एंड क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग ऑफ कोर्स. नेक्स्ट प्लीज, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है. There is the processing. What is the difficult? What is the difference from the agricultural goods or manufactured goods in the processing? Most of farm products have to be processed before their consumption by the ultimate consumer. सिंपल सी बात है कि लगभग जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है वो हमारी रॉ मटेरियल्स होती है, ठीक है. डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको हम हार्वेस्ट करने के बाद नहीं दे सकते. कई सारी चीज़ें ऐसी, ठीक है. इवन जो व्हीट भी है या सीरियल्स है, मिलेट्स है, वो हम डायरेक्ट कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं. सबसे पहले प्रोसेस्ड करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ही ले रहे हैं, या कोई वेजिटेबल्स है या कोई फ्रूट्स वगैरह. ए लॉट ऑफ कह सकते हैं ए लॉट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज वी कैन टेक बिफोर द प्रोसेसिंग, ठीक है. दिस प्रोसेसिंग फंक्शन इंक्रीज द प्राइस स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऑल्सो, ठीक. सो ये आपका जो डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर कमोडिटीज और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का था वो ये है. तो इनमें ये अंतर रहता है दोनों में, ठीक है. तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, टॉपिक है, वह इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. कि वाई वी आर स्टडीड द एग्रीकल्चर मार्केट, व्हाट द इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि इसका हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, या हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ते ही क्यों, ठीक है. तो कई सारी चीज़ें निकल के बाहर, जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बट इन एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. इट्स डायनामिक फंक्शंस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. So here the some major points we can take, ठीक है. This is one of the main point, the increase in farm income, ठीक है. यानी जो पहला आपका इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसके थ्रू हमारे जो फार्म की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, हो सकती है, होती है, जैसा भी आपको पता है, ठीक है. एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम इंश्योर्स हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिडल मैन, ठीक है, और बाय रेस्ट्रिक्टिंग द कमीशन
on marketing services and the malpractices are adopted by the marketing of farm products. ठीक है, an efficient system guarantees the farmers better prices for farm products and induces them to invest their surpluses in the purchase of modern inputs so that the productivity in production may increase. ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो आपके मिडल मैन वगैरह हैं जो भी है, ठीक है, तो जो मिडल मैन है अगर ये कहीं ना कहीं कम हो, ठीक है, एक मार्केटिंग चैनल होता है, एक मार्केटिंग चैनल जो प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर कंजम्पशन पॉइंट को जो भी पर्सनस आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं प्रोड्यूस को, वो सारे मार्केटिंग चैनल रहते हैं। अगर मिडल मैन कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है, तो इसमें एक तरफ तो जो प्रोड्यूसर है उसको अच्छा बेटर प्राइस मिलेगा, दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसको बेटर प्राइस मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ मार्केट, सपोज इफ यू फॉलो द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्टिविटीज देन द आल्सो वाइडन मार्केट। ठीक है, ए वेल नेट मार्केटिंग सिस्टम वाइडन्स द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट बाय टेकिंग देम टू रिमोट कंसर्न बोथ विद इन द आउटसाइड एंड country, that is areas away from the production point. The widening of market helps in increasing the demand on continuous basis and thereby guarantee a higher income to the producer also. ठीक है, so next please. Here also some point is there, growth of agro based industry. This is the very important question, points is here. ठीक है, so इसमें क्या है कि आपका जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा, अब जो पहले पॉइंट मैंने आपको था वाइडनिंग ऑफ मार्केट, तो जो नाउ डेज के चल रहा है कि जो एग्रीकल्चर जो क्या बोलते हैं ग्रोथ बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, आज की तरफ जो ध्यान लोगों का जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है कि जो भी हमारे पास मटेरियल उसको हम प्रोसेस्ड करके उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा है। ठीक है, एन इम्प्रूव्ड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हेल्प्स इन द growth of agro based industries and stimulate the overall development process of economy also. ठीक है, next please. ठीक है, next है price signals and efficient marketing system help the farmers in planning their production in accordance with the needs of the economy. ठीक है, next please. Here some 2 or 3 point also here, maybe 2-3 slides, then we are complete also. ठीक है, adoption and spread of new technology. ठीक है, so this is very important role in the agriculture marketing sector, the adoption and spread of new technology. The marketing system help the farmers in adoption of new scientific and technical knowledge. ठीक है, new technology requires higher investment and farmers would invest only if they are assured of market clearance. ठीक है, next please. Employment. The marketing system provides the employment to millions of persons engaged in various activities such as packaging, transportation, storage and processing. Of course, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको अगर हम यूँ देख के चलें कि जो पैकेजिंग के क्षेत्र में है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी से लगभग उसका पैकेजिंग करना है, एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी पैकेजिंग करना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड देन द ट्रांसपोर्टेशन में भी, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग में भी, जिसमें प्रोसेसिंग में तो बहुत से ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। एंड द एडिशन टू नेशनल इनकम, ऑफकोर्स जब एक पर्टिकुलर फार्मर, अगर हम इंडिविजुअली बात करें, एक पर्टिकुलर फार्मर जो होता है उसकी इनकम बढ़े, देन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, लॉट ऑफ फार्मर्स की इनकम बढ़े तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी इनकम ग्रो करेगा, देन हमारा स्टेट का भी इनकम ग्रो करेगा, देन ओवरऑल हमारा नेशनल इनकम ग्रो करेगा कहीं। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, देयर बाय द इंक्रीजिंग द नेशंस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमारा जो एनएनपी है और जीडीपी है, जीएनपी, जाहिर सी बात है वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट बेटर लिविंग, सिंपल सी बात है कि द मार्केटिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू अपलिफ्ट द पॉपुलेशन एज ए होल। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। क्रिएशन ऑफ, दिस इज द लास्ट फॉर यू, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पर्पस ऑल्सो। ठीक है, सो व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी? द एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्रिएट्स ए लॉट ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट इज दैट द मार्केटिंग एट द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट बट एट द सेम टाइम it add the utility to the product. The following 4 types of utilities the product are created by the marketing. Also in competition purpose पूछता है कि यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको याद रखने की 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, here first utility is that form utility. ठीक है, तो first point is in the for the purpose of competition, the first point is that the form utility creates the processing. ठीक है, the processing function adds from utility to the product by changing the raw material into a finished form. With the change the product becomes more useful. ठीक है, then it is in form in which it is produced by the
farmer also. Next please. ठीक है, place utility creates the transportation. Okay, the transportation functions add place utility to product by shifting them to place of need from the place of plenty. Full stop. Then the product command higher prices at the place of need than at the place of production because of the increased utility of the प्रोडक्ट. ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको जो प्लेस यूटिलिटी है, सपोज दैट जो हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत बेटर है. तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, है ना, कभी जाड़ा. तो अलग अलग एरियाज में और क्या है कि जैसे आपका अदर स्टेट में कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है बट दूसरे स्टेट में नहीं होता है. सपोज दैट आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, इन स्टेटों में क्या होता है अक्सर फ्रूट्स वगैरह जैसे कि हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल एप्पल का ही. ठीक है, तो एप्पल ओवरऑल स्टेट्स में तो मे बी लेस एंड लेस है बट उन स्टेट्स में बहुत अच्छा है, तो वहाँ से अदर स्टेट्स में भी सप्लाई हो सकता है. ठीक है, वो होता है. ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स द स्टोरेज. ठीक है, so the storage function adds the time utility to the product by making them available at the time when they are needed also. Okay, next please. Here the last one is that possession utility. ठीक है, possession utility creates the buying and selling. Okay, so the marketing function of buying and selling helps in the transfer of ownership from a person to another. Product are transferred through the marketing to persons having a higher utility from persons having a low utility. Okay, so these are 4 points of utility: form utility, time utility, ठीक है, और ये possession utility और place utility. Next please. ठीक है, this is your last slide for this is the very important question for your competition purpose also. ठीक है, here some questions also arises from this topic also. ठीक है, पहला क्या है कि the word markets come from the which language. ठीक है, द वर्ड मार्केट कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज मीन्स लैटिन वर्ड. ठीक है, ऑल्सो दूसरी तरह से पूछ सकता है कि जो मार्केट वर्ड है वो मार्केटस से लिया गया है. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्केंडाइज और ट्रेड होता है. ठीक है, और क्या है जो मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द वर्ड मार्केट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स मर्केंडाइज और ट्रेड. नेक्स्ट क्या है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस, फॉर्म और पोसेशन यूटिलिटी. तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कंपटीशन पर्पज के लिए. ठीक है, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स द स्टोरेज, और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट्स द ट्रांसपोर्टेशन, और फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट्स द प्रोसेसिंग, और पोसेशन यूटिलिटी क्रिएट्स द बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच. एनीवन कन्फ्यूजन?